And taking a deeper dive into the details of an unfortunate news coming in, ladies and gentlemen, at least 13 passengers were killed and around 20 got injured after they stepped down from their train on the tracks and were in fact run over by another train coming from the opposite direction in North Maharashtra's Jalgaon district on the evening of 22nd of January. Pushpak Express had halted after someone pulled the chain due to a rumor of a fire being in the train on board around 5 p.m. yesterday, and a few passengers reportedly then jumped off Pushpak Express and came under the coming Karnataka Express from the adjacent track from the opposite direction. So Maharashtra's Chief Minister Devendra Fadnavis said that the government will provide financial assistance of rupees 5 lakh to the families of those who unfortunately lost their life in this unfortunate accident. And the state government is also going to bear the entire expense of those who got injured and are also undergoing treatment at the nearby hospitals. Ladies and gentlemen, these are the visuals that we have picked up from ground. Some very disturbing and devastating visuals on your screen at the moment. We are advising viewers' discretion for the same. This is the particular train from which the passengers got down when they heard of a fire at the train. They were from the general compartment is also what we are picking up from our sources. In fact, from the opposite direction on the adjacent track, Karnataka Express was also coming in at around 130 kilometers per hour of speed. And unfortunately, mowed down the passengers who got down from Pushpak Express because of that rumor at around 5 p.m. yesterday. In fact, what we are also learning from our sources is that Railways has also announced 1.5 lakh rupees of ex gratia for those with the deceased families. 50,000 rupees is going to be given to those who got grievously injured and 5,000 rupees for those who got simple injury in this particular accident. Meanwhile, condolences from all corners of the country continued to pour in for the victims of the incident. From President to Prime Minister Narendra Modi, all have already expressed anguish over the incident. Authorities are currently underlooking what exactly has happened there. The current investigation is going on at the moment too. We'll continue to bring you all the nitty-gritties regarding this particular case as and when we receive it from our reporters who are currently deployed at the ground, speaking to the local people in that area. But at the moment, ladies and gentlemen, let's walk you through what exactly transpired on that unfateful day of yesterday. Pushpak Express had halted after someone pulled the chain suddenly due to a rumor which was floating in the train of a fire on board at around 5 p.m. yesterday. And hearing that, a few of the passengers got confused and then they reportedly jumped off the Pushpak Express and came under the coming Karnataka Express from the opposite direction at around 130 kilometers per hour of speed. पुष्पक एक्सप्रेस जो पाचोरा के पास में पहुंचने के बाद उसके जनरल कंपार्टमेंट में कुछ आग हुई थी और उस पर कुछ धुआं भी आए थे। वो देखने के बाद वहाँ पे पैसेंजर्स ने चेन खींचे। चेन स्लो होने के बाद वहाँ पे जनरल कंपार्टमेंट में जो लोग हैं नीचे उतरे थे। उसके बगल में जो रेलवे ट्रैक है अपोजिट डायरेक्शन में कर्नाटक एक्सप्रेस आई और उसकी वजह से ये हादसा हुई है और सबका बॉडीज यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में पहुंचे हैं और 10 लोगों का इंजरी हुई है। पाचोरा सिविल हॉस्पिटल में इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। जो इंजर्ड है डॉक्टर का हिसाब से वो माइनर कुछ क्रिटिकल नहीं है ऐसा बोला गया है। उनका आगे का पोस्टमार्टम और बॉडी हैंड ओवर करने का कार्रवाई चल रहा है। जो आइडेंटिफाई किया है लोगों में 3 लोग नेपाल से मिला है और यूपी का 2 लोग मिले हैं। ऐसा कई जगह से खास करके नॉर्थ इंडिया से। ये टेक्निकल विषय पे रेलवे का इंटरनल कमिटी जो भी रिपोर्ट देंगे उसके बाद जो सच में क्या हुआ ये सारी चीजों में आपको पता चलेगा। We have our reporter Pawan joining us on the broadcast. Pawan, हमें बताइए कि एग्जैक्टली क्या हुआ, कितने लोग जो हैं वो घायल हुए हैं और फिलहाल अस्पताल में हैं और सरकार का क्या कहना है इस मामले में?
ट्रेन रुकते ही लोगों ने छलांग लगाना जो है शुरू कर दिया। दूसरी तरफ से आने वाली कर्नाटका एक्सप्रेस से वो जो है टकरा गए और इसमें तकरीबन 13 लोग जो है वो उनकी मौत हो चुकी है और 10 से 12 लोग जो है वो बुरी तरीके से घायल हो चुके हैं। उनको जलगांव के प्राइवेट अस्पतालों में दाखिल कर दिया गया है। उन पे अभी इलाज जो है वो शुरू कर दिया गया है। जो लोग घायल है उनकी तरफ से रेल पुलिस और स्थानीय पुलिस जो है महाराष्ट्र पुलिस उनकी तरफ से जानकारी हासिल की जा रही है। इस बारे में जांच जो है वो अभी शुरू कर दी गई है। इस बारे में जलगांव के ग्रामीण पुलिस में एफआईआर भी दर्ज किया गया है। इस तरीके से अभी जो है अज्ञात लोगों पे जो है एफआईआर दर्ज किया गया है। अब इस बारे में जो जांच जो है रेल पुलिस की तरफ से शुरू कर दिया गया है। इसमें तकरीबन 13 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें एक चाय वाला था, उसकी तरफ से अफवाहें फैलाई गई थी, ऐसी जो है इन पैसेंजर का कहना है। और उसके बारे में दूसरे ने चेन की पुलिंग किया था। उसके बाद जो लोगों ने छलांग लगाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ से आने वाले ट्रेन को ये लोग जो है टकराए गए। आप यहाँ पे देख सकते हैं दो अपने को जो रेल ट्रैक है वो दिख रहे हैं। एक अप का है जो लखनऊ से मुंबई जाने वाली थी, वो पुष्पक अप वाली साइड में थी और डाउन वाले से जो है कर्नाटक से दिल्ली साइड जाने वाली एक ट्रेन आ रही थी। ये जो पुष्पक एक्सप्रेस पे लोग थे उन्होंने छलांग लगा दी। उसमें जो मौत हो चुकी है वो नेपाल और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और जो घायल है वो भी उत्तर प्रदेश के घायल लोग हैं। ऐसा जो है अभी वो पुलिस दर्ज में सब बताया गया है। इस बारे में अभी रेल पुलिस की तरफ से जो है जांच पूरी तरह से अभी शुरू कर दिया गया है। जी पवन जी हमारे साथ बने रहिए। वी हैव गॉट अ रिएक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र कमिंग इन। लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट ही हैज टू से अबाउट दिस हॉरिफिक इंसिडेंट। जळगाव जिल्ह्यातील पाचोरा नजीक अतिशय भीषण अशा प्रकारचा अपघात किंवा ही दुर्घटना घडलेली आहे आणि काही लोकांना ट्रेनमधनं धूर येतोय असं वाटल्यामुळे किंवा त्या ठिकाणी आग लागली आहे असं समज झाल्यामुळे त्यांनी ट्रेनमधनं उड्या घेतल्या आणि समोरून येणाऱ्या दुसऱ्या ट्रेनने त्यांना उडवलं आणि एक मोठा अपघात त्या ठिकाणी झालेला आहे। आमचे मंत्री गिरीश महाजनजी अपघाताच्या स्थळी पोहोचलेले आहेत। जी काही लोक मृत आहेत, जवळपास 10-11 लोक मृत असतील असा प्राथमिक अंदाज आहे। तेवढेच किंवा त्यापेक्षा जास्त लोक जखमी देखील असू शकतात। त्यामुळे सर्व जखमींची व्यवस्था ही करण्यात आलेली आहे। माझं जिल्हा प्रशासनाशी बोलणं झालंय, पोलीस प्रशासनाशी बोलणं झालं आणि मंत्री महोदयांशी बोलणं झालेलं आहे। ज्यांना जे त्या ठिकाणी मृत आहेत त्यांच्या कुटुंबाला 5 लाख रुपये मदत ही महाराष्ट्र सरकारच्या वतीनं आम्ही देणार आहोत आणि जे जखमी आहेत त्यांचा संपूर्ण उपचार हा वेगवेगळ्या हॉस्पिटल्समध्ये जिथे जिथे ते आहेत तो सगळा मोफत उपचार त्या ठिकाणी करण्यात येईल आणि त्यांचे जे नातेवाईक आहेत त्या नातेवाईकांच्या फॅसिलिटेशन करता किंवा त्यांना नीट सगळ्या गोष्टी मिळाव्यात अशा करता देखील सर्व प्रकारचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत। अतिशय दुर्दैवी अशा प्रकारची घटना आहे आणि मंत्री आमचे गिरीश महाजन या संपूर्ण जी काही घटना आहे त्या घटनास्थळी पोहोचून सर्व प्रकारच्या गोष्टी हँडल करतात। So that was Maharashtra's Chief Minister Devendra Fadnavis, ladies and gentlemen, saying that the government is going to provide financial assistance of rupees 5 lakh to the families of those who died in the unfortunate incident, and the state government is also going to bear the entire expenses of the injured. We heard what the Chief Minister of the state had to say about this tragic incident that transpired yesterday at around 5 p.m. In fact, Railways has also announced 1.5 lakh rupees ex gratia for the deceased's family, 50,000 rupees for grievously injured and 5,000 rupees for those who sustained some simple injuries in this particular incident. While we speak about the condolences coming in from all corners of the country for the victims of this incident, from President to Prime Minister Narendra Modi, everybody expressed their condolences for those who lost their lives. All have expressed their anguish over this horrific incident, the tragic one that claimed several lives and injured many as well. We are in fact flashing the words from the tweet coming in from the President of India, ladies and gentlemen, on your screen as well. रेल एक्सीडेंट हुआ था पाचोरा, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक तालुका है, वहाँ पर एक लोकेशन पर एक रेल एक्सीडेंट हुआ। इमीडिएटली जब सेंट्रल रेलवे का जो कंट्रोल रूम है उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया कि ऐसा दुर्घटना हुई है। इमीडिएटली 8 एम्बुलेंसेस 7 एजेंसीज इस पूरे मदद में लगी और 8 एम्बुलेंसेस वहाँ पर पहुंची। 3 हॉस्पिटल्स हमने एक्टिवेट किया, उसका ऑपरेशन थिएटर, ICUs, उसके साथ साथ मेडिसिन, ब्लड वगैरह।
फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहाँ पर 3 गाड़ियों को भेजी गई, जिसके साथ साथ बट उसका यूज़ नहीं हुआ। गैस कटर्स, लाइट्स, पुलिस की मदद से क्राउड का कंट्रोल की सडनली बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर जमे, और ये सारी चीज़ों के लिए मतलब इमीडिएटली हमने वहाँ पर कोशिश। Our reporter Pawan continues to stay on with us on the broadcast. He is currently joining us from the spot where this accident transpired yesterday. Pawan, हमें बताइए, एक सवाल यहाँ पे उठता है कि अगर ऑपोजिट डायरेक्शन से भी ट्रेन आ रही थी, जो हमें सुनने में आया 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, उसने ब्रेक क्यों नहीं मारा, ये जानते हुए कि बगल में जो ट्रेन दूसरे पटरी पे चल रही है उसने ब्रेक मारा हुआ है? जी हाँ, जो दूसरी तरफ से जो ट्रेन आ रही थी वो तकरीबन बड़ी तेज़ी से चल रही थी। जो हादसा हुआ वो हादसे के बाद उन्होंने थोड़ी देर पहले जो है बाद में यहाँ पे उन्होंने ब्रेक लगा दी। बाद में वो जो है ये हादसा होने के बाद वो यहाँ से निकल गई। जो ट्रेन थी पुष्पक एक्सप्रेस, वहाँ से जो लोग थे उन्होंने कर्नाटक एक्सप्रेस के सामने छलांग लगा दी। वो काफ़ी तेज़ी से आ रही थी। यहाँ पे जो है एक मोड़ है, ये मोड़ से हमने यहाँ पे देख लिया तो मोड़ पे जो है छलांग लगाने वाले को लोगों को ये रेल दिखाई नहीं दी गई, और इस वजह से ये जो हादसा है वो यहाँ पे हो चुका है। अभी जहाँ पे हादसा हुआ था यहीं पे हम है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अभी रेल के जो कर्मचारी यहाँ पे दाखिल हो चुके हैं। इस बारे में अभी जाँच जो है इनसे जारी की गई है। पवन, क्या आप हमें बता सकते हैं कि वो जो अफवाह उड़ाई गई थी ट्रेन में कि आग लगी है ट्रेन में, जिसके चलते वो डर के वो जो पैसेंजर्स है वो ट्रेन से छलांग मार दिए, वो अफवाह किसने उड़ाई थी? क्या अभी तक जांच में कुछ सामने निकल कर आया, और क्यों ये अफवाह आई भी थी? पशा आ रहा था और उसकी वजह से आग लग गई, ऐसी अफवाहें जो फैलाई गई, और डरे हुए लोगों ने चेन पुलिंग कर लिया, और चेन के बाद यहाँ पे जो है स्पार्किंग भी हो गया था। पवन जी हमारे साथ बने रहिए। आवर रिपोर्टर किशोर पाटिल इज ऑल्सो ज्वाइनिंग अस ऑन द ब्रॉडकास्ट फ्रॉम जलगांव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। किशोर जी, हमें बताइए कि अभी तक जांच पड़ताल में क्या सामने निकल के आया है, क्योंकि आप हॉस्पिटल से हमसे जुड़ रहे हैं। हमें बताइए कि कितने लोग घायल हुए हैं टोटल, और क्या क्या ट्रीटमेंट उन्हें दिया जा रहा है। हाँ साक्षी जी, इस घटना में अभी तक 13 लोगों की मौत हुई है, और उसमें 12 लोग जो है जख्मी है। जख्मी लोगों को जो इंसिडेंट हुआ था उसके पास में जो अस्पताल है पाचोरा, वहाँ पे दाखिल किया गया है। और जो 13 लोगों की जो मौत हुई है तो वो जो डेड बॉडी है सब ये जलगांव जिला सरकारी अस्पताल में यहाँ पे लाए गए हैं। और वो डेड बॉडी जो है अभी उसमें से 7 लोगों की जो है वो पहचान हो गई है। अभी बाकी लोगों की अभी तक पहचान हो नहीं पाई है, और ये डेड बॉडी जो है वो ले जाने के लिए अभी यहाँ पे जो रिश्तेदार है वो आना यहाँ पे शुरू हो गया है। पूछताछ हुई है क्या किशोर पाटिल जी अभी तक उनसे, जो घायल हुए हैं इस इंसिडेंट में, उनसे क्या कोई पूछताछ की गई है पुलिस ने, और पूछताछ में क्या बाहर निकल कर आया है सामने? लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी भी यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे जानकारी दी जा नहीं रही है। किशोर जी एंड पवन जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राइट नाउ वी हैव गॉट कपल ऑफ रिएक्शंस आल्सो कमिंग इन द सेम स्टोरी। लेट्स हियर ऑल ऑफ देम फर्स्ट। जब भी हम लोग पुष्पक एक्सप्रेस से हम लोग लखनऊ से मुंबई जा रहे थे, तभी हम लोग के बीच में यानी जब वो हुआ तभी आग लगने का हम लोग को वो हुआ, तो सब लोग भाग रहे थे। तो उधर से जब ये ट्रेन रुक गई पुष्पक एक्सप्रेस, तो आग लगने के लिए वो बोले, तो सब लोग उधर से जैसे ट्रेन में से इधर उधर भागने लगे। तो उधर से दिल्ली एक्सप्रेस आ रही थी, तो जितने लोग उस साइड की पटरी पे गए थे, जो 8-10 लोग जितने लोग थे उनको उधर से तो उड़ा दिया।
दिया। बाकी इस साइड में तो इस साइड वाले जितने थे उनको कुछ भी नहीं हुआ। और दिल्ली एक्सप्रेस जो आ रही थी वो बहुत स्पीड से आ रही थी, उन लोग कूदे और तुरंत ही उड़ा लेके चली गई सबको।